Hello everyone. My name is Ayush Sadas. I am core coordinator at Mining Engineering Society at NIT Raipur. I'm Ayush Bagel and I am the co-coordinator at MES at NIT Raipur. Today with us, Sampath Pradhan sir and Bose sir who secured All India rank 21 in gate mining 2025. Sir, we are very excited to have this conversation with you on behalf of Mining Engineering Society. Your journey has been a motivation to all the students here. It is a very much pleasure for us too for being here. So, sir, shall we begin with the questions? Yes, please. So begin with, can you walk us through your overall strategy for your gate preparation? Can you also tell what was your initial plan when you started your journey? So basically, like most of us have gone through the JEE mains and JEE advanced exams for getting through the engineering entrance exam for NIT Raipur and also other IITs. We know that there is a very much different kind of approach and strategy for being able to do the normal subjective type of questions and the MCQ based question which you find in these type of competitive exams. So since we are doing the BTech, then mining engineering from NIT Raipur, so our semester exams in like the mid semester and the end semester exams, it have the subjective type of questions mostly and some numerical part also. But in the gate, which is a competitive exam, we have much of numerical based questions which have MCQs and MSQs type of question and numeric answer type questions. So the different kind of approaches for such exams, we need a different kind of preparation. For this, we needed to have some sort of different approach. So going through that, we have, since the subjects were common, we had the theoretical part and the concepts from the academic also. And for the basically getting through these kind of MCQs, we have to give the tests and assessments that we opt for, like in from the coaching institutes also, and some free PYQs from the institutes of that conducted GATE in the previous years. What about you both, sir? How was your preparation strategy? सबसे पहले यही था कि स्टार्टिंग में मैंने पीवाईक्यूज़ को देखा सबसे पहले। पीवाईक्यूज़ को देखने के बाद एनालाइज़ कर लिया खुद को कि मैं अभी किस पोजीशन पे हूँ, मेरे को कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, मतलब हर दिन कितने घंटे पढ़ने की। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले पीवाईक्यूज़ ही सॉल्व किया सब्जेक्ट वाइज़ और फिर मॉक टेस्ट दिया। बस यही किया था मैं। ओके सर, तो फिर सर आपने जब प्लान किया होगा तो आपको कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा होगा, कौन सा सब्जेक्ट को पहले चूज़ करना होगा, ईजी हार्ड या कौन से या फिर मार्क्स वाइज, उसको आपने कैसे अप्रोच किया? इसके लिए तो सबसे पहले यही है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग को उसी सब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हम लोग को मार्क्स ही लाना है, हम लोग को ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। सर जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि रॉक मैकेनिक्स हो गया, माइनिंग मशीनरी हो गया, और सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है ये सिस्टम इंजीनियरिंग, अगर इजी वे में मार्क्स ज़्यादा लाना है तो। Sir, from where did you complete your whole GATE syllabus, and how long did it take you to complete the complete syllabus? Okay, so basically, if we see like how much time it takes, ideally it takes to complete the whole GATE syllabus. It has the numerical methods and other mathematical concepts also in the syllabus, other than the mining core subjects. So if we see from the BTech point of view, we got the mathematics in the our first year and second year only, and after that it was over. Then the core subjects came. So starting from the first year itself, it was important for us since we had targeted GATE as a final approach and our final goal to be after giving the exams. So we started in getting the syllabus firstly. Definitely we need to go through the syllabus, what is there in GATE and what things it asks. And in that we saw that there is mathematics part also. So which subjects it mainly targets in the GATE. We like kept our notes itself during that time only, and as we simultaneously prepared for the core subjects as we undergone our academics in the college. After that, if we like, since it is a numerical and mostly MCQ based paper, we like had to go through our revision notes in which we kept our formulas and other things at one place. And before the exam also, we in the last days we like revised only through these formulas. So basically the preparation went all through our BTech. But ideally, if we say the focus part we did was for almost 6 months, like in the our pre-final semester, like in the seventh semester only, we started in focused studying and practicing the questions.
and that was our timeline for me. So if a candidate ideally wants to complete the whole GATE syllabus, he has to dedicate at least 6 months for his preparations. Is that what you're trying to say? Yeah, basically, if we don't want to like get overburdened with the syllabus, we should have at least a preparation time of 6 months. Okay, so 6 months of hard work. So, sir, which coaching did you prefer? At our times, it was we are fortunate enough because before our like gate appearance, the seniors didn't have much scope of getting coachings from different like sources, and now also the main sources of like coaching for gate preparation in mining basically. So we have the online coaching institutes like Mining Yan, Mine Portal, Merit Plus. These and some extras also had the scope for mining engineering gate. So I personally went through some of these. Like I didn't take the full course in any of these, but I took a crash course in mining GAN for my final days preparation and like revision. And before that, I had some like PYQs and mock assessments from Merit Plus and also from MindGate. सर ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि पहले कोर करें, मैथमेटिक्स करें या एप्टी करें, या फिर सबको एक साथ लेके चलें। तो फिर आपका अप्रोच क्या था जिससे बेटर आपने ये इतना रैंक ला पाए? सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट ही करना चाहिए क्योंकि वेटेज सबसे ज़्यादा उसी का है। और जो मैथमेटिक्स पार्ट है उसके क्वेश्चंस के लेवल इजी रहते हैं, और एप्टीट्यूड है तो एप्टीट्यूड के लिए जब प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करते हैं तो उसी के साथ ही एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन हो जाता है। तो सबसे पहले वही कोर सब्जेक्ट कर लेना चाहिए, और उसी के साथ साथ जब 1-2 महीना बचा हो मैथमेटिक्स भी चालू कर देना चाहिए। और यही है कि सबका फुल नोट्स बनाने की जगह शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए वही काम में आएगा। अगर फुल नोट्स बना लिए तो लास्ट टाइम पे उसको रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे। तो यस सर। सर और मेनली कौन कौन से जैसे बुक्स हैं गेट्स के लिए जो कि फॉलो करनी चाहिए? गेट के लिए तो सबसे पहले बुक AK गोराई का जो बुक आता है, लोग अभी उसको बोलते हैं कि उसका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो डाउन हो गया है, बट वो कॉन्सेप्ट के लिए, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा करना है तो उसके लिए बुक ठीक है। तो सबसे पहले AK गोराई कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है कि PYQs के जो बुक आते हैं, PYQs सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज करके, तो उसको कर लेना चाहिए। और फिर लास्ट में वही है कि PYQs ईयर वाइज कर लेना चाहिए। बाकी इसके अलावा और कुछ बुक्स फॉलो करना चाहिए। सर तो फिर लास्ट मतलब कितने ईयर्स का आपने PYQ सॉल्व किया था? मैंने तो जनरली यहाँ 2012 के बाद का ही किया था, 2012 से 2024 तक के बीच का। सर आपने कौन से कोचिंग से पढ़े? मेरा कोचिंग, मैं किसी कोचिंग का मतलब कोर्स लिया नहीं था, बट मेरिट प्लस का मैं टेस्ट सीरीज लिया था। बाकी फिर जो कोचिंग है वो अपना ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराते हैं, तो उन सभी का मॉक टेस्ट देता था मैं टाइम टाइम पे। और जो एक माइंड गेट करके है उसमें भी सब्जेक्ट वाइज PYQ के इसमें क्वेश्चंस बने हुए हैं टेस्ट सीरीज टाइप में, वो फ्री हैं। तो वहाँ पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है, अगर जिसके पास कोर्स का मटेरियल नहीं है या फिर जो भी कोर्स नहीं लिया है। Sir, would you recommend the same books? Yeah, definitely. These are the conventional, the traditional books and study material that has been followed through very much time since the time GATE has been inculcated. Because our seniors also gave us the suggestion that at least one should go through the AK Gorai book at least 3 times. First time by not seeing any solutions, trying from like himself or herself, and the second time you can take the solutions and take the help from others, like how this question has to be approached. And the third time, before the exams, you should be able to pinpoint and mark the important questions, and you should be able to revise them, because definitely AK Gorai has got the good questions set for gate mining. Sir, so is there some content available on YouTube or any other free platform which is very accessible to the normal audience? Yeah, definitely. Like, see, on the GATE syllabus, it's not like it is a completely different syllabus, like it is not a very completely different exam. It derives its subject and syllabus from the basic mining engineering syllabus that has been taught for BTech as well as for diploma students also. So for these like BTech and diploma, there are YouTube channels, not like very much not famous, but they have content for getting the concept clarity. Other than this, we have NPTEL, like it is having content from IIT Kharagpur, IIT BHU, IIT Madras, and also since we have some common subjects with the civil engineering departments and other departments also, like rock mechanics, the main thing, the geomechanics part, we can definitely take the helps and resources of these NPTEL
subjects from there also. So there is a free content for this, but specifically for gate mining, there is not any like YouTube channel which gives free content. But for subject clarity and concept clarity, we have videos available freely. So there's no main channel where all the resources are curated like we have for other departments like for civil mechanical. Yeah, I think in the coming times we can have something, since mining engineering gate exam is getting much importance nowadays. Definitely because of the job opportunities lying further. But for now, as of current, there is no such single YouTube channel or YouTube playlist or any like free available websites that we can have that have curated videos and single point resources for all these exams. But easily we can get, like, but it is different sources for different subjects and sections. सर जैसे आपने बोला कि क्लासेस में बहुत थ्योरीज होती है और गेट एग्जाम में बहुत न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो फिर आपने क्लासेस और गेट के प्रिपरेशन में उसको कैसे बैलेंस किया? हाँ, किसी भी एग्ज़ाम के सबसे बेसिक चीज़ तो हमको वही रहती है कि हमको उस चीज़ सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहना ज़रूरी है। सिंस माइनिंग जो है बहुत ही एक प्रैक्टिकल और अप्लाइड फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में आता है, तो हमको उसमें काफ़ी चीज़ें विजुअलाइज करके समझनी पड़ती हैं। उसके बाद सिंस वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो उसमें कुछ ना कुछ अप्लाइड फार्मूलाज और नॉर्मल थ्योरी के पार्ट्स रहते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं हमको एक प्रॉपर न्यूमेरिकल आंसर फॉर्म करने में। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आने के लिए हमको क्लासेस जो हमको पढ़ाते हैं, अदर देन दिस अगर हमको वो चीज़ वहाँ पे समझ नहीं आ रही है, वी हैव वीडियोस ऑन ग्राउंड वर्क कैसे होता है। हमने अपना वोकेशनल ट्रेनिंग जब किया था, हमको उस टाइम पे काफ़ी क्लैरिटी आई थी सब्जेक्ट को लेके। उसके बाद हम लोग जब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरा प्रिपेयर करने लगे फोकस तरीके से, तब हमने फार्मूलाज वगैरह को रिमेंबर किया, मेमोराइज़ किया, क्योंकि वही फार्मूलाज कहीं ना कहीं हमको आंसर लाने में हेल्प करते हैं। पर सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल वाला पार्ट रहता है, उसके लिए हमको हमारे एकेडमिक्स जो हम कर रहे थे, नॉर्मल डिग्री कर रहे थे, उसी के जो क्लासेस थे उसने हेल्प किया। So another thing which I would like to ask is जो भी क्लास में आप लोग नोट्स बनाते थे जो प्रोफेसर्स पढ़ाते थे, so are those useful for our gate preparation or not? जैसे कि मैंने वापस से वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है कि पहली चीज़ जो हमको चाहिए होती है वो होती है थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अगर सब्जेक्ट को हमको समझना है तो। क्योंकि गेट जैसे एग्जाम सिर्फ ऐसे नहीं होते कि जो हम याद करके जा रहे हैं वही वहाँ से आए, कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके हमको सोचना पड़ता है। वी शुड हैव द थिंकिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो कि हमको कहीं ना कहीं क्लास के कॉन्सेप्ट से, जो हमने ऑन ग्राउंड देखा है सामने से, वो चीज़ हमको ला के देती है। तो सिंस हमने ये सब चीज़ें यहीं पर हमारे प्रोफेसर के थ्रू ही पढ़ा था, तो डेफिनेटली जो नोट्स उनके थे जो हमने क्लास में बनाए थे उनके लेक्चर्स के, वो हमको हेल्प किया है। और वही हमारे फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसके थ्रू हम लोग फिर आगे एडवांस किए थे। तो जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तब जो गेट में पार्टिसिपेशन था वो थोड़ा कम था, इट वाज अराउंड 5-6 थाउजेंड के अराउंड। फिर सेकेंड ईयर में गए तो और कंपटीशन बढ़ा, और अभी इस साल भी हम लोग देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 9,000 स्टूडेंट्स ने गेट के लिए अपीयर किया हुआ है। तो सर ये जो ग्रोइंग ट्रेंड है, तो इसका मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कंपटीशन एज सच अगर देखा जाए, नंबर्स ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि गेट माइनिंग के थ्रू हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, PSUs हो गए, उन सब में मिल रहा है। और माइनिंग एक ग्रोइंग फील्ड है, एटलीस्ट हमारे इस रीजन में, छत्तीसगढ़ रीजन जिसमें उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, नीचे आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट आ गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइनिंग का एक सेक्टर है, प्रॉपर डेवलप्ड सेक्टर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है। तो इस रीजन के हिसाब से, और अदर देन दिस ऑल्सो द ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट्स अब देख रहे हैं कि माइनिंग में इतना ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल है, कैरियर में उनका अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली इसीलिए हमको कहीं ना कहीं गेट माइनिंग में अपेयरिंग कैंडिडेट्स बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और ग्रोइंग ट्रेंड ही है। लाइक लास्ट ईयर के हिसाब से इतना आई थिंक 7,050 कैंडिडेट्स अपेयर किए थे, इस टाइम अराउंड 7,500 अप्रॉक्स लोग अपेयर किए हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ थी, पर अपेयर जो किए हैं उसका ये लगभग एग्जैक्ट के आसपास का नंबर था। तो ये चीज़ हो सकती है कि एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ते जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं। पर एट द एंड चीज़ वही आती है, अगर 100 लोग दे रहे हैं या 200 लोग दे रहे हैं या 2,000 लोग दे रहे हैं, अगर नंबर जिसको आने हैं, जिनकी रैंक आनी है, उनका प्रिपरेशन के ऊपर ही वो डिपेंड करता है। अगर मेरी रैंक अभी मॉक टेस्ट में 4,000 लोग दे रहे होंगे, मैं अगर रैंक अभी 1 लेके आ जाऊँगा, हो सकता है कि लोग बढ़ जाएँ मेन एग्ज़ाम के दिन, 5,000, 6,000, 10,000 भी हो जाएँ। पर कहीं न कहीं मेरा रैंक उसी के रेंज के आसपास रहेगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन वो चीज़ डिफ़ाइन करती है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स वो चीज़ डिफ़ाइन नहीं होती है। कहीं न कहीं मेरी खुद की सेल्फ प्रिपरेशन कितनी है, मैं खुद कहाँ स्टैंड करता हूँ उस उतने क्राउड में, वो चीज़ मैटर करती है। तो कॉम्पिटिशन है, अच्छी बात है, हेल्दी कॉम्पिटिशन ही है वो चीज़।
इंडस्ट्री के लिए वो चीज़ अच्छी है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे तो एक अच्छा पूल ऑफ कैंडिडेट्स आएंगे जो कि क्वालिफाई करके। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि होना चाहिए कंपटीशन, और इतना भी नहीं है। जो प्रिपरेशन कर रहा है कंपटीशन से नहीं, वो अपने आप से प्रिपरेशन करके अपने से कम्पीट करता है, एट द एंड अपना बेस्ट उनको देना रहता है उस दिन एग्ज़ाम वाले। Sir, what will be considered a good rank if someone wants to secure their seat in a PSU? So what will be considered a good rank? कि इतने में तो मिल ही जाएगा. Okay, so for the PSU point of view, like getting a job in a central government PSU, from our batch, like our batch started from 2021, year 2021. We are the current batch for 2025 who are going to passing out in this year. So from our super seniors batches like 2023, we have seen a like growing trend in the PSU, major PSU which recruits for mining engineering, that is Coal India Limited, that they release a good number of vacancies. Like it has some 250 to 300 range of vacancies each year. So for that, in this time when we were passing like studying, and we are seeing our seniors getting placed in these kind of companies, so we had the notion that at least we can have a good rank in between 200 to 250. If we get a 200 to 250 rank in gate mining, we can easily get through the selection and merit process and get a PSU of our choice. But since it is like definitely there is a job crisis currently going on in different sectors, but the core sector was like booming for some time. After a point of time, it will definitely, the job numbers will be declining in core sector also, like the vacancy that will be released from the Coal India also, it will have lesser numbers. So for like future trends, I think a gate rank of around 100 and below will be like a safe value for a person to get a PSU. So that is from my side, like 100 rank below, it is a safe. सर थ्रू आउट द जर्नी आपके बहुत अप्स एंड डाउन आए होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेटेड रखी थी टुवर्ड्स गेट प्रिपरेशन में? तो इसमें ऐसा था कि लाइक सिंस बीटेक हम लोग ज्वाइन कर लिए थे माइनिंग में, तो हमारा वो था कि बीटेक में तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं माइनिंग में, तो कुछ बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गए। उनके पास बहुत ह्यूज रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के टाइम पे भी, और नॉर्मल ऐसे ऑफ कैंपस अगर वो कोशिश करें, उनके भी गेट के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें वो PSU जा सकते हैं। तो हमारे लिए एक ऑप्शन था कि हम गेट प्रॉपर प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमको गेट के बाद डायरेक्ट जॉब, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो होती है, सरकारी नौकरी हमको मिल रही थी। अगर ये नहीं था, हमारे पास हायर एजुकेशन के भी अपॉर्चुनिटीज़ थी गेट के थ्रू, और कुछ हो के ना हो, कम से कम हमारे पास एक सेट हमारे पास फ्रेमवर्क था कि हमको इतने टाइम में ये चीज़ें करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने, जैसे कि सेकेंड ईयर में जो प्रिपरेशन स्टार्ट करें गेट की, ये हो ना हो, पर एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि हम लोग डिसाइड बहुत जल्दी कर लें कि हमको कौन सा ट्रैक पकड़ना है। जितनी जल्दी डिसाइड कर पाएंगे उतना तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कवर अप करने के लिए, उस ट्रैक को मतलब पकड़ के तुम लोग आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। तो अगर देखा जाए तो हमारा गेट का जर्नी उसी तरह से थोड़ा सा मोटिवेटेड था। बाकी अगर सीधी सी बात है, हर एक पर्सन का जो मेन सपोर्ट रहता है, बैकबोन रहता है, उनकी फैमिली रहती है। फैमिली के बाद डेफिनेटली हमारी जो नियर फैमिली जो है हमारे साथ यहाँ पे कॉलेज में, लाइक हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे रूममेट्स हो गए, हॉस्टल के मेट्स हो गए, हमारे डिस्टेंस रिलेटिव्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स, स्कूल के टाइम के फ्रेंड्स जो अभी क्या कर रहे हैं, वो हमको मोटिवेट करते रहे हैं आगे चलने के लिए। तो बाकी हमारे खुद के जो सीनियर्स थे जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका जो वहाँ पे काम है, उनका जो वो एक्सपीरियंस उनको आप शेयर करते हैं, आज भी हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो हमको मोटिवेट करता है कि हाँ हमको इसी लाइन में परस्यू करना था। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि 5 साल में या आने वाले समय में आप वेयर डू यू सी योरसेल्फ? इसका तो as such like my plan was to get a good gate score, और उसके बाद का सोचेंगे, ऐसा था हमारा। मतलब मेरा तो वही था कि गेट का एक स्कोर अच्छा आ जाए, उसके बाद देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़। पर ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा हो। एक तो हमारे पास सेट टारगेट होना चाहिए पहले से। अगर तुम गेट दे भी रहे हो तो गेट का तुम्हारा फाइनल आउटकम क्या है, स्कोर तो आ जाता है। गेट इज़ नॉट इन लाइक रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं होता वो तुमको बस एक अपना स्टैंडर्ड बताता है, तुमको एक एलिजिबिलिटी बताता है। उसके बाद तुमको क्या करना है वो तुमको डिसाइडेड होना चाहिए। कोई सामने से कंपनी आके तुमको गेट के स्कोर से नहीं लेके, तुमको खुद अप्लाई करना पड़ेगा, तुमको खुद करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना। तो मेरा अभी एज सच थोड़ा सा है कन्फ्यूजन राइट नाउ कि हायर एजुकेशन की तरफ परस्यू करूँ या फिर जॉब डायरेक्टली मैं गेट के थ्रू कर लूँ। तो ये मेरा अभी एज ऑफ नाउ है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर हायर एजुकेशन करना है तो डेफिनेटली वो भी एक अच्छा स्कोप है माइनिंग इंजीनियरिंग में। आगे एमटेक हो सकता है, पीएचडी हो सकता है। ये सब ना हो तो लाइक हमारे प्रोफेसर्स ने हमको बताया है कि अब्रॉड में भी एमएस वगैरह
पीएचडी वगैरह, जॉइंट एमएस पीएचडी, ये सब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अब्रॉड में भी इसका बहुत स्कोप है, तो जिनको अगर फॉरेन एजुकेशन लेने हैं या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके अब्रॉड में पढ़ने का एक एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए भी गेट एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा तो अभी का वही था। वो जाके बता पाएगा अपना। अब देखो, मेरा भी इसमें ऐसा ही सीन है कि अभी तो कुछ फिक्स नहीं है। मैं 1 साल पहले ही मतलब नॉन कोर छोड़ने के बाद मैं डायरेक्टली माइनिंग के फील्ड में जाने का नहीं सोचा था। मैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है उन सब के बारे में सोचा था, तो मैं उन्हीं सब का अभी भी टारगेट वही लेके चला था। तो इसमें मेन वही था कि मेरे को एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए था कि, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे पास गेट के थ्रू सीआईएल ही था। इसलिए मैं मेरा गेट देने का मेन पर्पस यही था कि मैं गेट दूंगा, अंडर 100 रैंक ला लूँगा, उसके बाद फिर एक जॉब सिक्योरिटी मेरे को मिल जाएगी। और इसका जो ज्वाइनिंग है वो लगभग अपना कंप्लीट होने के 1 साल बाद ही आता है। तो मैं ये 1 साल पहले से ही सोच के चल रहा था, और मैं पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन मतलब कर रहा हूँ। तो मेरा तो वही है कि मैं वही करूँगा 1 साल बाद। 1 साल अभी वही करने वाला हूँ, और बाकी फिर अगर 1 साल के बाद अगर जॉब में टाइमिंग मिलता है, जो कि मिलता है सीआईएल में, मैं देखा हूँ वहाँ एमसीएल में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा उनको टाइम मिल रहा था एक्स्ट्रा कुछ भी प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं तो वही करूँगा। अगर उसमें होता है तो वो अलग फिर लाइन में मैं चले जाऊँगा, अगर नहीं होता है तो फिर माइनिंग में ही रह के अच्छे से काम करके मतलब जीएम जल्दी से जल्दी बनने का ट्राई करूँगा, यही है। सर, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी जूनियर्स हैं हमारे, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो ये चीज़ वहीं से डिराइव होती है कि लाइक अपने कैरियर चॉइस तुम्हारा क्या रहने वाला है, लॉन्ग टर्म में तुम अपने लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, तुम लोग अपना कैरियर कहाँ पे देखते हो। इसका चॉइस तुम लोग बहुत जल्दी करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर है। लाइक अगर तुम लोग सेकेंड ईयर के एंडिंग एंडिंग में, मतलब अपने पहले वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद अगर कंफर्म हो जाते हो कि लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद कोर में रहना पसंद करोगे, कोर तुम्हारे लिए नहीं बना है, या फिर तुम कोर में सेटल नहीं हो सकते आगे चल के, तुम्हारे कुछ और एस्पिरेशंस है, तो तुम लोग उसमें डिसाइडेड जल्दी हो जाओगे, तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर 2 साल का टाइम और रहेगा जिसमें तुम उसी के अकॉर्डिंग लाइक प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मेरा वही है कि स्टार्ट अर्ली, लाइक मेक योर कैरियर चॉइस इन द सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। सर आपका? मेरा भी ये है कि जो अपना जो पहला वोकेशनल ट्रेनिंग होता है उसके बाद कम से कम मिनिमम ये फिक्स कर लेना चाहिए कि आपको आगे करना क्या है। अगर एक बार ये फिक्स हो गया तभी आप अपने जो टारगेट या गोल है उसको अचीव कर पाओगे। अगर जितना लेट करोगे आपका एज भी बढ़ते जाएगा, और आप फिर उतना मेहनत नहीं कर पाओगे जितना कि कर सकते थे। सबसे पहला यही है कि अपना पहले जितना जल्दी हो सके टारगेट फिक्स कर लो कि ये करना है, और उसी के हिसाब से उसका स्ट्रेटजी बना लो कि ये मेरे को ये टाइमलाइन एक फ्रेम के हिसाब से 1 ईयर प्लान या फिर 2 ईयर प्लान इस टाइप का। उसके बाद उसी में मतलब अपना तैयारी करने के लिए लग जाओ, ऐसा है। बाकी तो फिर वही मोटिवेटेड रहना चाहिए कभी भी, खुद को कम नहीं समझना चाहिए। स्पेशली तो बोलना चाहूँगा, डिमोटिवेट होने का मतलब कोई सेंस बनता नहीं है। कि काफ़ी सारे मतलब ऐसे देखने को मिल जाता है कि काफ़ी जो काम पीछे से एकदम काफ़ी ज़्यादा आगे भी जा चुके हैं, तो उन्हीं सब से थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए। बाकी फिर मोटिवेटेड होते हुए अपना तैयारी करते रहना चाहिए। मोटिवेशन में फिर वही चीज़ आ जाती है आखिरी में कि तुम एक कॉलेज में हो, अभी कॉलेज के डेज हाँ। कहीं ना कहीं लाइफ के उन गोल्डन मेमोरीज में आ जाता है, जो कि शायद और तुमको आगे चल के ना मिले। उसके बाद तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा जॉब, तुम्हारी फैमिली, फ्यूचर फैमिली, वो सब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं जो कि तुमको मतलब फिर और मौका नहीं मिलेगा जो अभी तुमको एक कॉलेज में मिल रहा है। हम्म। ये तुम्हारा आखिरी टाइम रहेगा जो तुम एक एजुकेशन, प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो, अगर तुम हायर स्टडी प्रोसीड नहीं करेगा उस सेंस में। तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन हो जाए या फिर अपनी मेमोरीज हो जाएँ, कम से कम आने वाले अपने जनरेशन को तुम बता तो पाओगे हम लोगों ने ये सब चीज़ें भी की थी। तो वो सब चीज़ें के लिए तुमको अपना एक टाइम निकालना चाहिए। प्रिपरेशन अपनी जगह है, पर साथ में ज़िंदगी जीने के लिए, ना कि सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए। तो वो चीज़ भी एक मेंटेन करना एक रहना चाहिए कि हाँ, एक हमारे फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है, हमारे खुद के मतलब कुछ नेटवर्किंग है अपने दोस्तों में, जो कि हमको एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं आगे चल के भी। क्योंकि आगे की ज़िंदगी सिर्फ बीटेक की डिग्री पे नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारे अभी के बनाए हुए नेटवर्क पे, अपने अभी के बनाए तुम्हारे दोस्त पे भी, दोस्तों पे मतलब काफ़ी डिपेंड करेगी। तो ये चीज़ हम लोग कहना चाहेंगे। Although although we have a lot to ask you guys, but today we'll have to stop here. So I would like to thank both of you a lot for this, and thank you for sharing your time and wisdom with us. Thank you. Thank you. It was an amazing experience for us.